Welcome students in biology class. In previous video we described about the solid waste. What is the method of disposal of solid wastage? Today we discuss a very important component of environment, that is the soil. What is the soil? Soil is the uppermost layer of earth crust. This is the uppermost layer of earth crust is known as the soil. That is clear? So today we discuss about the soil pollutions. What is the soil pollutions? For soil or water or air we are given only one definitions. On the basis of them you are described the define of the soil pollution. Means soil pollution is undesirable changes of physical, chemical or biological property of the soil, that is known as the soil pollutions. Okay. It may be defined as the presence of material in the soil which are harmful to the living beings when they cross their threshold concentration level. Means minerals which are present in the soil which are harmful for the living organisms, this is known as the cause the soil pollution. Means this is component is known as the pollutants. Okay. So what is the major sources of soil pollutions? मेजर सोर्सेस कौन से हैं सॉइल पोल्यूशंस के? फर्स्ट वन, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड फ्रॉम क्रॉप लैंड. विच फर्टिलाइजर विच आर यूज इन एग्रीकल्चर फील्ड्स as well as the pesticides, you know about them, different type of pesticide used for the against the different type of pathogens, and you know about them pesticide, they cannot decompose. Means due to these chemical properties they kill the living organism which are responsible for the replenishment of nutrient in the soil. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में रहते हैं, जो उसको डिकम्पोज करके ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल को सॉइल में मिक्स करते हैं, उसको एक किल्ड करने का काम करता है. दैट इज क्लियर. सेकेंड वन, सॉलिड वेस्टेज फ्रॉम द इंडस्ट्रीज एंड हाउस होल्ड. जो सॉलिड वेस्टेड मटेरियल है विच आर रिलीज फ्रॉम द इंडस्ट्रीज और हाउस होल्ड. इंडस्ट्रीज को जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल उसको रिमूव कर दिया जाता है, तो फील्ड को पूरा कवर कर दिया जाता है, जिसके कारण जो प्रॉपर्टी है सॉइल की वो डिग्रेड हो जाती है. एज वेल एज द हाउस होल्ड प्रोडक्ट, जो घर के वेस्ट मटेरियल है उसको भी रिमूव कर दिया जाता है फील्ड में. ठीक है. तो वहाँ की जो सॉइल की प्रॉपर्टी तो वो डिग्रेड हो जाती है. दैट इज क्लियर. नेक्स्ट वन, rains may wash down heavy and other toxic chemicals present in the solid waste. जो रेनफॉल होता है दैट इज द वॉश द सरफेस ऑफ सॉइल. मीन्स दे वॉश द टॉक्सिक कंपोनेंट्स chemicals which are present in solid wastes, they are mixed with the water and flow into the on the surface of soil. Means this is the degrade the fertility of soil. That is clear. Okay. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सॉइल पोल्यूशन? यदि सॉइल पोल्यूटेड हो रहा है तो उसका अफेक्ट कहां पड़ेगा? फर्स्ट वन, नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स आर किल्ड इन द सॉइल. जिसका टारगेट नहीं है किल करने का, वो भी इसमें किल्ड हो जाते हैं. जस्ट लाइक वी डिस्कस अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट ऑफ सॉइल, which are killed by the chemicals which are run off from the industry waste material or household material with the water during the rainy seasons. Okay.
मतलब टारगेट उसको नहीं किया है, फिर भी दैट इज किल्ड, और वो किल्ड हो गया तो न्यूट्रिएंट जो रिप्लेनिशमेंट करता है वो नहीं हो पाएगा सॉइल की। दैट इज क्लियर। सेकेंड, सॉइल बिकम्स इनफर्टाइल। जो फर्टिलिटी थी सॉइल की वो डिग्रेड हो जाती है ड्यू टू द सॉइल पोल्यूशन। ओके। थर्ड वन, पेस्टिसाइड कैन रिजल्ट इन बायोमैग्निफिकेशन। Pesticides can result in biomagnification, means that is the increase the biomagnification. You know about them, pesticides cannot easily degradable, or they cannot decompose. ठीक है। So what is the effect? They run off with the rainwater that just goes into the pond or river. ठीक। And this component this goes inside the phytoplankton, then fish to the larger larger fish to the birds, fish eating birds, उसके बॉडी में जाके एक्यूमुलेट होता है, जिससे जो बर्ड्स है उसकी जो एग्स जो रिलीज करती है वो आउटर लेयर उसका थिन हो जाता है, बिकॉज दैट इज रिएक्ट विद द कैल्शियम कार्बोनेट, जो आउटर कवरिंग होती है उसकी, उससे रिएक्ट कर जाता है, थिनिंग हो जाती है, और जैसे हैसिंग के लिए उस पर बैठती है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। सो देयर इज द रिड्यूस द नंबर ऑफ फिश ईटिंग बर्ड्स। दैट इज क्लियर। तो व्हाट इज द बायोमैग्निफिकेशन है क्या? बायोमैग्निफिकेशन इज ए प्रोसेस इन विच दैट इज इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक सबस्टांस इन द फूड चेन। दैट इज क्लियर। सो दिस इज द effect of soil pollutions on the environment. That is clear. How can we control them, soil pollutions? So one of the major preventive measures for the harmful effects of agrochemicals is practicing organic farming. जहाँ हम केमिकल यूज कर रहे थे, पेस्टिसाइड यूज कर रहे थे, वहां पर हम यूज करें एग्रोकेमिकल या ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज करें, मीन्स दे कैन नॉट अफेक्ट द सॉइल, मीन्स दे कैन नॉट किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके। In operators in the form of cycle where waste from one process is cycled as a nutrient to the next process, it leads to maximum utilization of resources and higher production efficiency. ओके, केस स्टडी कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के, क्या इफेक्ट इसका पड़ता है। जस्ट लाइक दैट इज गिवन वन केस स्टडी है। रमेश चंद्रा डोंगर, a farmer in the Sonipat, has adopted the approach of the integrated organic farming. उसने ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज करना चालू कर दिया। He included beekeeping, dairy management, water harvesting, composting and agriculture in the chain of process which support each other and allow an extremely economical and sustainable ventures. ठीक है, इसने इसके थ्रू बी कीपिंग, डेयरी मैनेजमेंट, वेस्ट हार्वेस्टिंग, कंपोस्टिंग एंड एग्रीकल्चर, ये सभी स्टार्ट किया, और दिस द डिपेंडेड ऑन ईच अदर्स, एक दूसरे पे डिपेंड है। जैसे बी कीपिंग किस पर डिपेंड है? फ्लावर पर। फ्लावर किसके थ्रू ग्रोथ करेंगे? सॉइल के थ्रू। सॉइल के फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए क्या यूज़ कर रहा है वो? जो वेस्ट मटेरियल है किसका? एनिमल्स का। ठीक है, डेयरी मिल्क उसका यूज़ किया जा रहा है फॉर द इकोनॉमिकली वैल्यूज। क्रॉप वेस्ट एंड एनिमल वेस्ट दोनों का यूज़ कर रहे हैं, जैसे इसमें दिया हुआ है। क्रॉप वेस्ट एंड एनिमल वेस्ट डंग कैन बी यूज मेक द कंपोस्ट एंड मैन्यूर, इसके द्वारा कंपोस्ट और मैन्यूर का फॉर्मेशन कर रहा है। 10 केमिकल फर्टिलाइजर आर नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ केमिकल फर्टिलाइजर रिक्वायर्ड नहीं थी। दैट इज क्लियर, वो मैन्यूर का ही यूज कर रहा है। कंपोस्ट इज ऑल्सो यूज द जनरेट नेचुरल गैस फॉर द फॉर्म, उस फॉर्म के लिए नेचुरल गैस का भी फॉर्मेशन कर रहे हैं। डिकम्पोस्ट का जो गैस निकल रहा है उसका यूज कर सकता है। ओके,
Dongar has created the Haryana Kisan Welfare Club with a current membership of 5000 फार्मर. इसके साथ 5000 फार्मर इसके साथ इंक्लूड ए मेंबर एक क्लब बना लिया. दैट इज क्लियर. यदि सॉइल की कंपोजिशन की बात करें, देयर आर डिफरेंट कंपोनेंट्स. ह्यूमस होता है, ठीक है, ए जोन बी जोन, यू नो अबाउट देम. व्हाट इज द नीड फॉर सॉइल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. क्या आवश्यकता है? It provides the natural habitat for the various living organisms, for the example bacteria, fungi, algae and earthworm. एक नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करता है ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए. सेकेंड, इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सबको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यू नो अबाउट देम. क्योंकि जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज डिपेंड ऑन द प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट. और प्रोडक्ट कहाँ से आता है? वो प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन होता है प्लांट किसके थ्रू करता है? दैट इज द न्यूट्रिएंट, विच न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन द सॉइल. सॉइल हेल्प टू बाइंड द रूट्स टू प्लांट टू प्रोवाइड देम एंकरेज. प्लांट की जो रूट होती है बाइंड करता है सॉइल पार्टिकल को, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ फ्लड्स. सॉइल पोल्यूशन का एक नेक्स्ट रीजन है, वो आपका है soil erosions. What is the soil erosions? Removal of the useful components from the soil and addition of hazardous substances into the called soil pollution. This is the first we discuss about them. और जो मेजर काजें यहाँ पे हम बता रहे हैं, दैट इज अनदर प्रोसेस, दैट इज द सॉइल इरोजन. इट इज द रिमूवल एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल from its original position due to the factors such as wind and water. ठीक है. causes क्या है soil erosion के? there are different causes, just like a strong winds carry fine soil particle from one place to another. Second one, heavy rains was unprotected top soil into the stream and river. इसकी तरफ फ्लो करके चला जाता है river and stream में. Deforestation can also lead to the soil erosion. जो डिफॉरेस्टेशन होता है, कटिंग ऑफ ट्री कर रहे हैं लार्ज एरिया में, उसके कारण भी सॉइल इरोजन होता है. इम्प्रॉपर कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस फॉर द लॉन्ग टाइम कैन कॉज द सॉइल इरोजन. इम्प्रॉपर प्रैक्टिसेस मतलब एक कंटिन्यू प्रोसेस में आपका यदि कल्टीवेशन नहीं किया है, दैट इज ऑल्सो कॉज द सॉइल इरोजन. हाउ कैन वी प्रिवेंट फ्रॉम द सॉइल इरोजन? एफॉरेस्टेशन. ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाए जिसके कारण वो जो रूट है प्लांट की वो सॉइल पार्टिकल को कैप्चर किए रहे. ठीक है. सेकेंड वन इज द कंटूर फ्लोइंग ऑन द हिली एरियाज. कंटूर फ्लोइंग प्लॉगिंग करना, ठीक है, छोटे छोटे एरिया बना करके उस पर खेती करना. स्टेप फार्मिंग, स्टेप फार्मिंग यूज करना, वन बाय वन, वन सीजन में कोई और प्लांट, सेकेंड सीजन में कोई और प्लांट का यूज करना. कंट्रोल ग्रेजिंग, यू नो अबाउट देम. यदि लार्जर एनिमल्स एक पर्टिकुलर फील्ड जाता है तो उसकी फर्टिलिटी डिग्रेड होती है, मतलब सॉइल स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक डाउन हो जाता है और एयर के द्वारा या वाटर के द्वारा वो फ्लो करके चले जाते हैं. तो कम से कम ग्रेजिंग, उसमें एनिमल्स कम से कम जाएं ग्रेजिंग करने के लिए. ओके. So this is the soil pollutions. I hope that all are clear from this topic. Thank you for watching the videos. Thanks.